Hello everyone. Now in our advanced structure, today we are going to see some definition about our second chapter. So before we going to see, in a previous video we saw that there are different type of stresses and strain. So types of stresses and strain. So there are 5 types of stresses. First is tensile stress, compressive stress, shear stress, bending stress and torsional stress. So it is stress. Now what is stress? So resisting force per unit area. Stress is equal to force upon area. So sigma equal to P upon A and unit is Newton per mm square. Now what is strain? Strain is equal to delta L upon L. Change in the length ratio between change in the length upon original length. So now what is Hooke's law? Okay, in which condition Hooke's law is applied? So in elastic limit, stress is directly proportional to strain. It is called Hooke's law. Stress proportional to strain. Sigma proportional to epsilon. So E become stress upon strain. It is called Hooke's law. Now some definition are here. So first is strength. तो व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेलियर. कोई भी मटेरियल है जो उसकी एबिलिटी है फेलियर को रोकने की, तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. नाउ सेकंड स्टिफनेस. स्टिफनेस किसे बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा मटेरियल, सो इट इज़ कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल. So what is strength and what is stiffness of material? So strength is ability of material to resist failure and stiffness ability of the material to resist deformation. So stiffness is equal to load upon deformation. K is equal to P upon delta. Unit is Newton per mm square. Now next, homogeneous material. So material is the same kind throughout, same composition. ठीक है, किसी भी मटेरियल हमारे पास होगा तो मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए. सो इट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस मटेरियल. नाउ आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इट हैज़ आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल किसे बोलेंगे? जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो कौन सी प्रॉपर्टीज़? आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, तो ऑल डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए. सो इट इज़ कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल. And anisotropic material, तो elastic properties are different in all direction. Now orthotropic material. What is orthotropic material? तो three mutually perpendicular plane of elastic symmetry. So it is called orthotropic material. So some material are there and their modulus of elasticity. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी मटेरियल हार्ड होगा, हार्डन द मटेरियल मोर इट्स यंग मॉड्यूलस ई. सो फर्स्ट इज स्टील इज वेरी हार्ड मटेरियल, सो इट इज़ वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2.1 10⁵. कास्ट आयरन 1.3 10⁵. यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर. सेम कॉपर 1.0 10⁵. ब्रास इज इक्वल टू 0.8 10⁵. एल्यूमिनियम 0.7 10⁵. एंड टिम्बर इज 0.1 10⁵. So now next is some example based on stress, strain and change in a length. So example लिखेंगे. तो फर्स्ट એક્ઝામ્પલ ઇઝ કે 1.5 મીટરની લંબાઈ અને 12 mm વ્યાસવાળા એક પોલાર સળિયા પર 30 કિલોન્યૂટનનું અક્ષીય તાણબળ લાગે છે. તો સળિયામાં ઉત્પન્ન થતું પ્રતિબળ, વિકાર અને લંબાઈમાં થતો ફેરફાર શોધો. E इज इक्वल टू 2 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है? तो हमारे पास एक रॉड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करो लाइक दिस कि हमारे पास एक प्रिज्मेटिक रॉड है. लेंथ क्या है उसकी? 1.5 मीटर. उसको मेंशन करो 1.5 मीटर. डायमीटर क्या है? इट इज़ 12 mm.
30 કિલોન્યુટનનું અક્ષીય તાણબળ, સો કેટલું ટેન્શન બળ લાગે છે? 30 કિલોન્यूटन। तो हमें क्या फाइंड करना है? स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमें फिगर ड्रॉ करो। यहाँ पे दिखाई दी है कि 1.5 मीटर लेंथ है, L इज इक्वल टू 1.5। देन टेंशन फोर्स कितना आएगा? P 30 किलोन्यूटन एंड डायमीटर इज 12 मीटर। सो गिवन डेटा D इज इक्वल टू 12 mm, L is equal to 1.5 meter, so converted into mm, so it's become 1500 mm. P is equal to 30 kilonewton and E is equal to 2 × 10⁵ Newton per mm square. So now first of all we find area of the road. So it is circular diameter, so we know that area is equal to A is equal to pi/4 into d square. We have diameter of the road, it's 12 mm, so directly we can find area pi/4 into d square. We have d is equal to 12, so area is equal to pi/4 into 12 square, so it is 113.09 mm square। ठीक है, इतनी वैल्यू मिल गई है। सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? स्ट्रेस यानी सिग्मा, स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन एंड थर्ड डेल्टा एल। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू P अपन A एंड E इक्वल टू डेल्टा L अपन L। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस फाइंड करेंगे। तो वी हैव इक्वेशन फॉर स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू P अपन A, वी हैव P इज इक्वल टू 30 10 क्यूब, हियर P इज इक्वल टू 30 10 क्यूब, एरिया इज इक्वल टू 113.09 mm square. So we simplified it and get the value of stress is equal to 265.27 Newton per mm square. Now next हम क्या फाइंड करना है? स्ट्रेन। तो we know that स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा L अपन L. So but we have not value of delta L, so we apply another equation. So we have value of यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 × 10⁵। ठीक है, सो वी नो डेट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड यंग मॉड्यूलस, इट इज हुक्स लॉ। सो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन बिकम स्ट्रेस अपन यंग मॉड्यूलस। ठीक है, कैसे आया? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, so sigma is equal to young modulus into strain, so strain is equal to stress upon young modulus. So here we have value of stress, stress की वैल्यू हमारे पास है जो हमने फाइंड की है 265.27 एंड E की वैल्यू हमने गिवन डेटा है, so 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm square. Now we simplified it and got the value of 1.326 × 10⁻³ ठीक है, तो ऐसे हमें स्ट्रेस मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन अ लेंथ। सो वी नो डेट स्ट्रेन इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन चेंज इन अ लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L अपन L। सो डेल्टा L को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो डेल्टा L इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू L। सो in above step we find value of strain, it is 1326.10⁻³ and length we have 1.5 meter, so it is 1500 mm. So we get the value of delta L is equal to 1.989, so it is near to 2 mm. delta L is equal to 2 mm. So फिर से वापस हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास ये रोड है, प्रिज्मेटिक रोड, फोर्स लग रहा है P कितना है 30, ठीक है, और लेंथ क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड किया कि टेंशन फोर्स की वजह से इस स्टील रोड में क्या होगा, लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, कितना होगा 2 mm। ठीक है, दोनों साइड होगा 2 mm, सो डेल्टा L/2, तो दोनों साइड 1 mm इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, सो 1500 mm में
कितना का इंक्रीमेंट होगा, 2 का, ठीक है। कितना टेंशन होगा, 30 किलो न्यूटन। सो इन अ स्टील रोड 30 किलो न्यूटन का टेंशन आएगा, तो उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा, 2 सो इन दिस वे वी कैन फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन अ लेंथ. नाउ अवर सेकंड एग्जाम्पल. एक સળિયાનો વ્યાસ 24 mm અને લંબાઈ 2 મીટર છે. તેના પર 40 કિલોન્યુટન અક્ષીય ખેંચાણ બળ લાગે છે. જો તેની લંબાઈમાં 0.5 mmનો વધારો થતો હોય તો સળિયામાં ઉત્પન્ન થતું પ્રતિબળ અને સ્થિતિસ્થાપકતા मापांक शोधो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रो द फिगर. सबसे पहले क्या करना है कि फिगर ड्रॉ करना है. गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमें फिगर ड्रॉ करना है. तो क्या है, हमें एक रोड कंसीडर करना है, ठीक है. लाइक दिस हमारे पास ये रोड है. क्या है उसका डायमीटर क्या है, 24 mm. डायमीटर क्या है, 24 mm. लेंथ क्या है उसकी, 2 मीटर. इट इज़ 2 मीटर, बराबर. देन 40 किलो न्यूटन क्या है, इट इज़ टेंसाइल फोर्स, ठीक है. तो ये 40 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स की वजह से रोड की लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट होगी, 0.5 mm, ठीक है. ये डेल्टा एल कितना है, 0.5 mm जो हमें गिवन है. तो हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस. सो इट इज़ सिग्मा. स्ट्रेस फाइंड करना है एंड यंग मॉड्यूलस ई, ठीक है. 2 वैल्यू फाइंड करना है. प्रीवियस एग्जाम्पल में ये वैल्यू दी गई है यंग मॉड्यूलस की और हमें डेल्टा एल फाइंड करना है. इस एग्जाम्पल में क्या करना है, डेल्टा एल हमें गिवन है एंड हमें यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है. सो सेम फॉर्मूला यूज होगी. सो वी हैव P इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन. सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूटन. सो 40 10³ न्यूटन. नाउ L इज इक्वल टू 2 मीटर. सो इट्स बिकम 2000 mm. Diameter of the road 24 mm and delta L is equal to 0.5 mm. So we have first of all find stress. So stress sigma is equal to force upon area P upon A. So first of all we find A. We know that area of circular diameter pi by 4 into d square. We have d equal to 24 mm. So A is equal to pi by 4 into 24 square. So simplified it and we get the area of the road is equal to 452.38 mm square. So first we find stress. So stress is equal to sigma is equal to P upon A. We have value of P. P is equal to 40 10³ and area जो हमें फाइंड की है वो क्या है, 452.38 mm square. Simplified it and we get the stress of the रोड इज इक्वल टू 88.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो हमें स्ट्रेस मिल गया. देन नाउ हमें क्या फाइंड करना है, यंग मॉड्यूलस. तो यंग मॉड्यूलस हमें कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, ठीक है. यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. सो वी हैव वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू है जो अपर स्टेप में हमें फाइंड किया है 88.42. लेकिन हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू नहीं है तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो स्ट्रेन की वैल्यू कैसे मिलेगी, वी नो डेट स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल. सो वी हैव ऑल्सो वैल्यू ऑफ डेल्टा एल एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ एल. सो डायरेक्टली वी गॉट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ठीक है. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू वी हैव 0.5 एंड एल इज इक्वल टू 2000. सो वी गेट स्ट्रेन इज इक्वल टू 2.5 10⁻⁴. सो स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिल गई, स्ट्रेन की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है. सो नाउ वी फाइंड यंग मॉड्यूलर. सो वी नो दैट E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 88.48 एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू 2.5 10⁻⁴. So simplified it and we get the value of young modulus. So it is 353.68 10⁻³ Newton per mm square. So in this way we can find stress, strain, change in a length
એન્ડ યંગ મોડ્યુલસ ઓફ ધી રોડ. સો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો. વોટ ઇઝ સ્ટ્રેસ? તો સ્ટ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપન એરિયા, સ્ટ્રેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એલ અપન એલ, મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રેસ અપન સ્ટ્રેન, and delta L is equal to PL upon A.